اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج مولا علی علیہ السلام کا موعظہ بیان کریں گے۔ جو غریب لکڑہارا تھا وہ کیسے امیر ہوا، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موعظہ حضرت علی علیہ السلام۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا، جاؤ بیٹا ہمسائی کے گھر سے سگریٹ سلکا لاؤ۔ جب لڑکی ہمسائی کے گھر سے سگریٹ سلکانے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن ہمسائی عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھا دیا اور پھر سلکانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ شاید ہمسائی عورت مجھے اب کی دفعہ کلیجی کھانے کے لیے دے دے، لیکن اب کی دفعہ بھی ہمسائی عورت نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر عہدہ رہ چکا تھا۔ جب باپ کو دیا تو باپ نے کہا، بیٹا آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ کہا، نہیں بابا جان، ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، لیکن اس نے مجھے کلیجی کھانے کو نہیں دی۔ بابا جان، کل آپ میرے لیے ضرور کلیجی لائیے گا۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹا ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے موجود نہیں کہ ایک ماچس ہی خرید لیں، میں کلیجی کہاں سے لا کے دوں گا؟ لڑکی نے کہا، نہیں بابا جان، آپ کل ضرور کلیجی لائیے گا۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹا، 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو کیا دیکھتا ہے، جو لکڑیاں اس نے جمع کی تھی وہ جل کر راکھ ہو گئیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کھا گیا۔ عالم غشی میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں، یہ لو، جب ان کو آزماؤ تو مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر دروازے کے پیچھے چھپا رہا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے۔ باہر آ کر دیکھا تو باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ بیٹی نے کہا، بابا جان اندر آ جائیں۔ باپ نے کہا، نہیں بیٹی، مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ بیٹی نے کہا، کوئی بات نہیں بابا جان، آپ آ جائیں، خداوند کریم ہمیں اور بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی تو لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈال لیا، وہی سنگریزے نکال کر اپنی بیٹی کو دیے، کہا، لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے وہ لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ اگلی صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ وہ ڈر کر باہر آ گئی۔ لکڑہارے سے کہنے لگی کہ ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا تو جواہرات چمک رہے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ اس نے ان پر ایک چادر ڈال دی۔ اگلی صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا۔ جوہری نے بیش قیمتی ہیرا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کہنے لگا کہ گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔
लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गई वो भर कर ले आया और वहाँ ज़मीन ख़रीदी जहाँ मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा ने इसे संगरेज़े दिए थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फ़रज आले मुहम्मद। और वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत ही आराम और ऐशास की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझ पर अब हज वाजिब हो गया है, इसलिए मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। कुछ दिनों के बाद माँ ने बेटी से कहा, जाओ बेटा 7 किस्म की मिठाई लाओ, मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मी अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, इसलिए हम रंग रंग की मिठाई पर ख़त्म नहीं दिलाते। वालदा खामोश हुई रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हवाम में गुस्ल करने के लिए गई कि यकायक भूल हुआ कि हवाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और शहज़ादी हवाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चुनाचे सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और लड़की नहीं गई। इन्होंने कहा कि हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलका और शहज़ादी तशरीफ़ ले आई। इन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जैसे ही लकड़हारे की लड़की हवाम से गुस्ल करके बाहर निकली तो शहज़ादी ने देखा कि इसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहज़ादी ने कहा कि ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा, आओ हम तुम सहेलियाँ बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूँगी। शहज़ादी ने कहा, हम तुम सहेलियाँ तो बन गई हैं, लेकिन तुम हमारे घर ज़रूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहज़ादी से मिलने के लिए गई तो शहज़ादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर निकली तो देखा कि खूंटी पर उसका जो हार था वो गायब है। शहज़ादी ने अपनी नौकरानी से कहा कि तुमने मेरा हार चुरा लिया है। नौकरानी ने कहा कि नहीं, मैंने आपका हार नहीं चुराया, ये आपकी सहेली का काम है। चुनाचे बादशाह को बुलाया गया। बादशाह ने पूछताछ की तो इन्होंने कहा कि चोरी तो हमने तब भी नहीं की थी कि जब हम बहुत गरीब थे, तो अब क्यों करनी थी? लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। उसी वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैदखाने में डाल दो और इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दो। इधर जब लकड़हारा हज के लिए गया तो डाकुओं ने रास्ते में सब कुछ लूट लिया। वो बग़ैर हज किए ही वापस लौट आया। घर आके देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा कि चोरी तो तब भी इन्होंने नहीं की थी कि जब आप बहुत गरीब थे, तो अब क्यों करनी थी? लेकिन बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा, अच्छा अगर आप इन्हें कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी लड़की और बीवी कैद में रहे और मैं घर में बैठूं। चुनाचे लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई तो लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया। इनसे पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला अली मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाती रही हो? इन्होंने कहा कि नहीं। लकड़हारे ने कहा कि बस ये इसी कोताही की सज़ा है। बस के सारी रात रोते रहे और तौबा करते रहे। जब नींद आ गई तो आलम ख्वाब में देखा है एक नकाब पोश तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फ़रज आले मुहम्मद। और फरमाते हैं कि तुम न्याज देना भूल गए थे, इसलिए अदाब इलाही का नज़ूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास तो न्याज देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। इन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाना, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, इसकी शरीरी मंगवा कर ख़त्म दिलाना, तमाम मुसीबतें टल जाएंगी। अगली सुबह जब लकड़हारा उठा, अपना तकिया उठाया तो नीचे से 5 पैसे बरामद हुए। कैदखाने के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया।
लकड़हारे ने देखा कि एक नौजवान लड़का आ रहा है। इसने कहा कि ए लड़के, मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। उसने कहा, बूढ़ा कैद भी हो गया है, अब भी शरीनी ही खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाज़ार से मेहंदी वगैरह ख़रीदने जा रहा हूँ। लड़का भी ये कहकर चंद कदम ही बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जैसे ही लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा जवान लड़का मर गया है, वो रोता हुआ कैदखाने के दरवाजे से गुज़रा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। इस आदमी ने कहा, मेरे साथ तो जो होना था वो तो हो गुज़रा है, मैं क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊँ। चुनांचे इसने इस लकड़हारे को 5 पैसे की शरीनी ला के दी। लकड़हारे ने इस पर ख़त्म दिलाया और इस आदमी से पूछा कि तुम इतने अज़ुर्दा क्यों हो। इस आदमी ने कहा कि मेरा जवान लड़का मर गया है और आज उसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शरीनी इसे दी और कहा कि इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चुनांचे इसने ऐसे ही किया। जैसे ही पानी का पहला कतरा लड़के के हलक में उतरा, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। इधर दोपहर का वक्त बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने वो हार खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर बहुत हैरान हुआ, कहने लगा, इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है। उसी वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाक़या बादशाह के गोशे गुजार किया। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपना ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा कि आज से आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ। जब तक ज़िंदा रहूँगा आपकी खिदमत करता रहूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। ए पाक परवरदिगार आलम बतुफ़ैल अपने हबीब मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के ख़ुसूसी हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा जिस तरह इस लकड़हारे की मुश्किल को हल फरमाया है, इसी तरह तमाम मोमिन मोमिनात की दीनी व दुनियावी जायज़ात को बरला।